और डूइंग दिस, पहले हमको कौन सा डेटा सेट पकड़ना चाहिए? We should go with the sales table. ओके, सो लेट्स सेल्स. ओके, ओके. I get a transaction ID first, the sale date, the painting ID which is sold, the artist ID who created the painting, the collector ID who bought the painting, and the sales price. Okay, what do you think? How does the granularity look like? Granularity क्या होगा? Does the granularity remain the same or it's different from what's the input? Input is Sir, we will group by the artist table with the sales table. okay, but first answer the question that do you think the granularity is going to change, or this is what it's going to be? We'll just add some more columns or we'll do some filtering. We will definitely do some filtering, sir. Sorry, we'll definitely do. Sir, we will definitely do some filtering. So so you're saying we'll do filtering, but the granularity remains the same. It's the same Yes, level of yes, detail, right? yes, sir. Okay. So you want me to do group by, but if you do group by, then the granularity is changing, right? Yes, sir. ठीक है. No issues. Let's understand what you have in mind. तो क्या करना है? Group by करना है. Yes, sir. Okay. Go on. Sir, ID and sales price. ID and sales price. This, right? Yes, sir. Okay. Uh, Anybody kind of differs or agrees to this? All right. This is not the right way of doing it. I mean, it's a completely different solution that you're proposing. So let's make the correction. Okay. Let's read the question again. Question ये बता रहा है कि for each artist, I need the total amount of sales. ठीक है. ये जो who has sold at least one painting, this is some kind of condition that they have implemented, right? जो कि या तो where से होगा या तो having से होगा. कैसे होगा बाद में सोचेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है. और ये जो है ये लास्ट में मेरे को जब वो आउटपुट बन जाएगा उसके साथ आर्टिस्ट नेम भी जोड़ना पड़ेगा टोटल सेल्स अमाउंट के साथ, ठीक है. बट मेरे को फॉर ईच आर्टिस्ट सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स चाहिए, राइट? तो आई विल ग्रुप बाय ऑन आर्टिस्ट आईडी. दिस इज द ट्रांजैक्शन आईडी, द आईडी दैट यू आर सीइंग, ठीक है. और मेरे को सम ऑफ सेल प्राइस करना, ठीक है. ओके, सेल्स. ओके, अभी क्वेश्चन ये है कि who has sold at least one painting, right? So people can sell one painting, two painting, 10 भी सेल कर सकते हैं, राइट? तो डू यू थिंक कि ये जो मैंने क्वेरी लिखा है इसमें वेयर या हैविंग लिखना चाहिए मेरे को, और शुडंट आई राइट इट? और अगर लिखना भी चाहिए तो वेयर लिखूं या हैविंग लिखूं? Sir, having, sir. यहाँ पे हैविंग लिखूं, राइट? हैविंग क्या? आर्टिस्ट आईडी. सॉरी तारा. आर्टिस्ट आईडी. आर्टिस्ट आईडी. गो ऑन.
ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये चीज सबको समझ आ रहा है ना कि वेयर नहीं लगेगा, राइट? वेयर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैं जो फिल्टरिंग करना चाहता हूँ वो काउंट पे करना चाहता हूँ। अब काउंट के लिए हैविंग चाहिए, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हैविंग होगा, ठीक है। हैविंग काउंट ऑफ 1 सोल्ड एटलीस्ट 1 पेंटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये सबको समझ आ रहा है ना, Yes, sir. राइट? अब मैं कुछ और बोलने वाला हूँ। अब मैं ये बोलने वाला हूँ कि इसका जरूरत ही नहीं है। Having a मतलब it's not even required to write, because if a painting has sold then only there is a record in this table, right? So when you are grouping by, right, मैं अगर इतना करूं, यहाँ पे अगर मैं काउंट भी कर दूं, राइट, मैंने हैविंग को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे काउंट 3 to 1 ही आएगा। 1 तो मिनिमम है, 0 कभी आ ही नहीं सकता, बिकॉज तुम ग्रुप बाय आर्टिस्ट आईडी कर रहे हो, राइट? तो ये हैविंग का जरूरत नहीं है। ये समझ आ रहा है ना सबको कि हैविंग का जरूरत क्यों नहीं है? Yes. राइट, ठीक है। अब वन पीस ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट कि फाइल द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर आर्टिस्ट हु हैव सोल्ड एटलीस्ट 1 पेंटिंग। मैं ये काउंट 1 को भी हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ along with this output table, right, the granularity has changed anyways, but along with the output of this table मेरे को आर्टिस्ट का नेम भी चाहिए। तो मैं कैसे लाऊं? Join with the artist table. करेक्ट। तो अब मैं ज्वाइन करूंगा आर्टिस्ट के साथ। तो पहले एक बार आर्टिस्ट को देखता हूँ, ठीक है। आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। चलो मैं एक कॉन्कैट करके एक फुल नेम क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब इस टेबल को जो ऊपर आउटपुट टेबल आया है ना उसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, फ्रॉम आर्टिस्ट एज ए, राइट, ज्वाइन। अब या तो तुम इसको सीटी में सेव कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल के एज ए एक्सटर्नल टेबल यूज कर लो, ठीक है। तो मैं इसको एज एन एक्सटर्नल टेबल ही यूज करता हूँ, ठीक है। इसको कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक एलियस देना पड़ेगा टेबल नेम का, राइट। लेट्स से एज एग्रीगेट सेल टेबल, ठीक है। ओके, फिर ऑन कंडीशन, तो एज ए डॉट आई डी इक्वल टू एग्रीगेट सेल टेबल डॉट आर्टिस्ट आईडी। आर्टिस्ट आईडी में जो आईडी कॉलम है दैट इज सेम एज आर्टिस्ट आईडी इन द सेल टेबल, राइट। तो अब अगर ऐसा करूं, राइट, अब मेरे को यहाँ बोलो यहाँ पे कौन सा जॉइन यूज करना चाहिए था। Based on the question, what join should I have used? So inner join. Why inner join? Why not left or right? Well, we have to fetch the matching values in both the tables. Correct. But अगर मैं inner join करूँ तो जो दो आर्टिस्ट एक्स्ट्रा थे उनको मैंने ड्रॉप कर दिया, राइट। जैसे ये वाला 4 और 5 ड्रॉप हुए शायद, तो वो तो ड्रॉप हो गया ना, राइट। Yes. तो क्वेश्चन में लिखा है ना कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स हु हैव सोल्ड एटलीस्ट 1 पेंटिंग। अब 4 और 5 के एंट्रीज नहीं है, मतलब उन्होंने कोई सेल नहीं किया है, उनका कोई पेंटिंग बिका नहीं है, या तो बनाया नहीं है। अगर बनाया नहीं है तो तब तो सेल टेबल में जाएगा भी नहीं, और अगर सेल भी नहीं हुआ तब भी नहीं जाएगा, राइट।
तो जो भी केस है वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि सेल नहीं हुआ है कोई पेंटिंग का, तो हेंस दे डोंट हैव एंट्री देयर, तो मैं डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली इनर ज्वाइन कर सकता हूँ, करेक्ट? एनी डाउट्स हियर, or do you want me to explain again? Please tell me. So please explain again. Okay. कौन सा पार्ट, पूरा या कोई एक स्पेसिफिक पार्ट? Only this join part. ठीक है। अब देखो, जब मैंने ये किया था ना, ये चलाया था ग्रुप बाय आर्टिस्ट आईडी, तो मेरे को 3 एंट्री मिले थे, राइट, आर्टिस्ट आईडी के। ये 3 कौन है जिनका पेंटिंग्स बिका है, राइट? एटलीस्ट एक पेंटिंग बिका है, राइट? मेरे को जो आउटपुट पॉपुलेट करना है, जो फाइनल आउटपुट है, उसमें भी 3 ही एंट्रीज होने चाहिए, 5 नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर आर्टिस्ट हु सोल्ड एटलीस्ट 1 पेंटिंग, राइट? डिस्प्ले आर्टिस्ट नेम एंड टोटल सेल्स अमाउंट। अब जिनका नहीं बिका है उनका नहीं पॉपुलेट करना है, तो इन दैट केस इधर 1 2 3 है, और जो आर्टिस्ट टेबल है उसमें 1 2 3 4 5 है, तो आई डोंट नीड द एंट्रीज फॉर 4 and 5 टू बी विजिबल एज द आउटपुट, करेक्ट? तो मैं इजीली इनर ज्वाइन कर सकता हूँ, सो दैट 4 5 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर? और इफ यू वांट टू डू दिस यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन, दैट्स आल्सो पॉसिबल, आई विल शो यू, ठीक है? इसको लेफ्ट ज्वाइन किया हमने, अब 2 एंट्रीज आएंगी, बट उनका जो राइट साइड कंपोनेंट होगा वो ना लाएगा, आर्टिस्ट आईडी और सम, राइट? तो तुम यहाँ पे और एक फिल्टर लगा सकते हो, राइट, वेयर आर्टिस्ट आईडी इज नॉट नल, क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि उनका एक भी पेंटिंग बिका नहीं। क्लियर ऑन दिस? Yeah, clear, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से और एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? डू यू थिंक वी कैन डू दिस यूजिंग एनी अदर मेथड? दिमाग में आ रहा है अभी किसी का तो और कोई सोल्यूशन है, और मे बी यू थॉट अबाउट इट व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन? ओके, अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने आर्टिस्ट टेबल लिया है, फिर मैंने ज्वाइन करने के लिए ग्रुप्ड बाय डेटा लिया है, राइट? एक ओरिजिनल डेटा सेट है और एक ग्रुप बाय डेटा सेट है, उसको फिर ज्वाइन किया है, राइट? मैं अब उल्टा करूंगा, मैं पहले ज्वाइन कर दूंगा और बाद में ग्रुप बाय करूंगा, ठीक है? देखो कैसे होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, यहाँ से मैं देखता हूँ, that is as s on a dot id equal to s dot artist id, ठीक है? ओके, तो अभी क्या हुआ, जिसके जितने पेंटिंग्स बिके थे, राइट, वो सेल्स टेबल में थे, उनके साथ उनका नाम भी उठ के आ गया, राइट? तो इफ यू रिमेंबर द काउंट, लाइक इफ आई रन दिस अगेन, राइट, टोटल 6 पेंटिंग्स बिकी थी, करेक्ट? तो थॉमस का, ओके, आई डोंट हैव द काउंट हियर, लेट मी पुट दैट हियर एज वेल, ओके? हाँ, तो थॉमस का एक बिका था, केट का 2 और नैटली की 2 बिकी थी, राइट? अब 1 2 3 पैटर्न है ऐसे, अच्छा, जिसका जो आर्टिस्ट आईडी है उतना ही काउंट उसका है, तो दिस मेक सिंपल, वी डोंट इवन हैव टू टेक द नेम्स नाउ। अब देखो यहाँ पे भी टोटल मैं ज्वाइन करूँ ना, तो 6 एंट्रीज आनी चाहिए, करेक्ट? 1 to many मैपिंग है ये, या many to 1 मैपिंग है, डिपेंड्स ऑन वेयर यू प्लेस द टेबल्स, ईदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। ये समझ आ रहा है ना कि क्या हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं ग्रुप बाय करूंगा, ठीक है? Group by on artist name. हाँ, यू कैन डू इट ऑन आर्टिस्ट नेम, और लेट्स से आर्टिस्ट आईडी पे ही कर, ठीक है? ठीक है,
अब ग्रुप बाय किया है तो ये हट जाएगा, राइट। इसको इस पे 1 सेकंड की कमेंट कर देते, ठीक है, राइट। अभी 3 ही एंट्रीज दिखाएगा ये, करेक्ट। अब मेरे को क्या चाहिए, सम ऑफ सेल्स चाहिए। मैं ऊपर से ले आता हूँ, अकाउंट भी ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब चैलेंज क्या है बताओ, मेरे को आर्टिस्ट का नेम चाहिए। मैं आर्टिस्ट का नेम कैसे लाऊं? कैन आई राइट आर्टिस्ट नेम हियर? दैट इज द क्वेश्चन। मतलब ये वाला, ये इसी को लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं सर। एवरीबडी अग्रीज टू दिस, राइट? लिख सकते हैं। Yes, sir. तारा, अनु, इसको लिख सकते हैं? Yes, sir. Not sure, sir. नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब तुम ग्रुप बाय करो तो सिलेक्ट में या तो ग्रुप बाय कॉलम्स आएंगे या फिर एग्रीगेट फंक्शंस आएंगे। तो ये तो ग्रुप बाय कॉलम या वेरिएबल है, ये एग्रीगेट है, बट ये नहीं है ना, तो ये एरर थ्रो करेगा। देखो, मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज और यूज्ड इन एन एग्रीगेट फंक्शन, करेक्ट। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट, राइट? यस सर। तो मतलब डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करें अब यहाँ से? सर हम लोग स्टार्टिंग से आर्टिस्ट नेम को लेके भी प्रोसीड कर सकते हैं, आई थिंक। आर्टिस्ट नेम को लेके क्या करेंगे? ग्रुप बाय कर देंगे। जी सर, ग्रुप बाय करेंगे वो भी आर्टिस्ट नेम को लेके ही करेंगे, और ज्वाइन कर देंगे सेल्स के साथ आर्टिस्ट नेम, वो आई थिंक वो काम कर। नहीं, ज्वाइन के लिए तो मेरे को आर्टिस्ट आईडी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट आईडी दोनों टेबल में है। ये पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि मैं यस ग्रुप सर। बाय डायरेक्टली इस पे करूँ, नेम पे करूँ, वही बोल रहे हो ना? जी सर, मैं यही बोल रहा हूँ सर, ग्रुप लेकिन बाय उसमें आर्टिस्ट क्या नेम को। प्रॉब्लम होगा, मेरे को आर्टिस्ट आईडी भी चाहिए सपोज, तब क्या करोगे? मेरे को आर्टिस्ट आईडी और आर्टिस्ट नेम दोनों चाहिए आउटपुट में, राइट? वैसा वैसा कंडीशन है, करेक्ट। तो यहाँ से भी इसका सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। या तो इसको ग्रुप बाय में डाल दो इसके साथ, ठीक है, तो ये आएगा, करेक्ट। ये समझ आया मैंने क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल ग्रुप बाय करके आउटपुट कैसे लाया मैं। ये समझ आया ना सबको या नहीं है? सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर, प्लीज अलाउ। ठीक है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, ग्रुप बाय नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय नहीं करते हैं, और अब आउटपुट देखते हैं। एक कॉमा के वजह से निकल रहा है, ठीक है। ये है 6 ही रिकॉर्ड्स आने थे, 6 आ गए, राइट। अभी देखो, अभी अगर ग्रुप बाय मैं सिर्फ आर्टिस्ट आईडी पे करूँ, राइट, तो मेरे पास 3 एंट्रीज आएंगी, 1 2 3, राइट। और जो भी काउंट आएगा या जो भी सम आएगा, करेक्ट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके। नाउ एटलीस्ट टेल मी, हैव यू गाइस वर्कड ऑन सिनेरियो जहां पे तुमने ग्रुप बाय में 2 कॉलम्स दिए हैं, ऐसा हैव यू ट्राइड? और मतलब if you haven't tried, then I'll begin the explanation from scratch. So I need some context here. आशीष, यस सर। मतलब ग्रुप बाय में 2 कॉलम से 3 कॉलम यूज किए हैं? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब जब हम 2 कॉलम पे ग्रुप बाय करते हैं ना, तो क्या होता है, जो यूनिक पेयर्स होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे ये देख रहा है कि 1 के साथ और कितने
डिफरेंट टाइप का फुल नेम है, एक ही है, तो ये एक पेयर बनेगा। 2 के साथ केट स्मिथ है सिर्फ, और कुछ नहीं है, और 3 के साथ नैटली वेन है, राइट। तो यहाँ पे भी 3 ही एंट्रीज आएगा, यहाँ पे आर्टिस्ट आईडी आएगा, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे 1 2 3 और उसका नेम। तो तुम जब ग्रुप बाय कर रहे हो तो तुम्हारा अभी भी 3 ही रिकॉर्ड्स हैं, करेक्ट, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट आईडी के करस्पॉन्डिंग एक ही नाम होगा ना। यहाँ पे 6 की जगह अगर 1 लाख भी रिकॉर्ड्स होते, 1 लाख लेट्स से, स्टिल द आउटपुट वुड हैव बीन 3, बिकॉज एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट आईडी के करस्पॉन्डिंग एक ही नाम होगा ना, राइट। सेम आईडी के Yes, लिए sir. 2 नाम तो नहीं हो सकते, तो तब भी 3 आएगा, करेक्ट। जी सर। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर ऐसा कुछ होता। अभी अगर मतलब 1 में ना ऐसा अभिजीत होता ना, मान लो, राइट, अभी मैं ग्रुप बाय करूं तो कितने आएंगे बताओ, यूनिक पेयर्स, दोनों वेरिएबल पे ग्रुप बाय करूं तो 4. 4 आएंगे, राइट। एक 1 के साथ अभिजीत, एक 1 के साथ थॉमस ब्लैक, 2 केट स्मिथ और 3 नैटली वेन, करेक्ट। तो Yes. अब वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, राइट। अब देखो, हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बाय आर्टिस्ट आईडी कर दिया और नेम पे कर दिया, बिकॉज आई नो कि एक आर्टिस्ट आईडी के लिए एक ही नाम हो सकता है, राइट। तो मैं ये कर सकता हूँ। तो अभी भी 3 ही पेयर्स हैं, बट अब उस पर्टिकुलर पेयर के लिए टोटल सेल कितना हुआ है और काउंट कितना हुआ, क्लियर। दिस माइट नॉट मेक 100% सेंस टू यू राइट नाउ। इसको थोड़ा तुमको डाइसेक्ट करके खुद फ्री टाइम में ना सोचना पड़ेगा कि मैं ग्रुप बाय हटा के देखता हूँ, मैं सम ऑफ सेल्स हटा के देखता हूँ, तो क्या होगा, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड प्ले विद इट अ बिट। अभी मतलब एक लेवल तक ही तुम समझ पाओगे, बट अनटिल एंड अनलेस यू डू दिस हैंड्स ऑन ना, कि मैं सिर्फ फर्स्ट नेम पे ग्रुप बाय करके देखता हूँ क्या होता है, तब फुल क्लैरिटी आएगा। बट अभी के लिए इवन इफ यू हैव गॉट 60-70% क्लैरिटी, दैट्स फाइन फॉर मी। उतना क्लैरिटी आया ना? जी सर। ओके। अब इसका एक दूसरा तरीका करने का, अब मैं ग्रुप बाय सिर्फ आर्टिस्ट आईडी पे करूँगा, राइट। तो मैं इस ये तो डाल नहीं सकता, ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, राइट, एरर देगा, करेक्ट। बट मैं ये तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि बिकॉज आई नो कि एक आर्टिस्ट आईडी के लिए एक ही नाम होगा, तो मैं यहाँ मैक्स डाल सकता हूँ या मेन डाल सकता हूँ, दोनों में सेम आएगा, क्योंकि अगर एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसका मैक्स और मेन सेम ही होगा, तो ये भी काम करेगा। ओके, इधर कॉमा होगा, राइट। दोनों, you should know both these techniques because I'll share some insights here. Uh, I was in an interview for Uber, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें 2 वेरिएबल पे ग्रुप बाय करना था, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन एट ऑल, 1 साल के ऊपर का बात, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बाय एक ही कॉलम पे किया और मैंने मैक्स डाल दिया, ठीक है। बट द इंटरव्यूअर शी वांटेड कि ग्रुप बाय 2 वेरिएबल पे हो, वो मेरे को पता है या नहीं, तो शी केप्ट ऑन आस्किंग मी इज देयर अदर मेथड दैट यू नो, इससे और कुछ दूसरा मेथड है जो तुमको पता है, ये मैक्स ही क्यों डाला, कुछ और कर सकते थे क्या। तो उसके बाद आई टोल्ड हर कि मैं 2 वेरिएबल पे ग्रुप बाय करके वो मैक्स मिन वाला डिपेंडेंसी हटा सकता हूँ। क्लियर ऑन दिस मेथड? Yes. ऑलराइट, एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? एनी क्वेश्चंस हियर? So as the difficulty of the question increases ना, जहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स को तुमको अलग अलग करके फिर जोड़ना है, जो मैं फर्स्ट क्लास में बोल रहा था, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, राइट। ये 2 तरीके अलग थे, पहले मैंने ग्रुप बाय किया था सोल्यूशन 1 में और फिर ज्वाइन किया था, यहाँ पे मैंने पहले ज्वाइन किया और फिर ग्रुप बाय किया, राइट। तो आगे जाके एक तीसरा मेथड भी हो सकता है, राइट।
So it all depends on how proficient you are with SQL and how you can break the problem into different parts and then rejoin. Okay, ठीक है. अब ये क्वेश्चन करते हैं. दिख रहा है? You can see the question, right? Okay. So what do you think? How should we approach this? Guys, The can you total- please respond? Sir, select artist name and count cell or on cell ID. From artist हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं फिर उसको आर्टिस्ट को sales on डायरेक्टली artist ज्वाइन कर दूं सेल्स के साथ, ये बोल रहे हो? यस सर ठीक है, कर देते हैं. और ग्रुप बाय कर लेंगे और आर्टिस्ट नेम पे तो यही बोल रहे हो ना जो ऊपर किया है? जी Right. सर ठीक है, चलो अब बताओ. सॉरी, क्वेश्चन मिट गया क्या? बताओ अब क्या करना है? Sir, can I please go through the column again, like the having the painting sold, or is there any किसका, column? आर्टिस्ट का या सेल्स का? Artist का sir. Yeah. Sorry, sales का sales. फ्रॉम सेल्स. Sir, having painting तो sold तो मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे greater than 2 करके? सर जो represent पेंटिंग करेंगे? सेल हुआ है उसको कैसे हाविंग से रिप्रेजेंट करेंगे वो नहीं समझ आया. जैसे हाविंग पेंटिंग सोल्ड इज ग्रेटर देन लाइक 2. राइट, उसका हैविंग में कैसे लिखेंगे वही पूछ रहे हो? जी सर, जैसे हाविंग पेंटिंग सोल्ड ग्रेटर देन 2 फॉर ईच आर्टिस्ट, इसको हम्म, डबल ग्रुप बाय करना होगा या फिर एक ही ग्रुप बाय में हो सकता एक ही में हो जाएगा. बट मतलब जी सबको ये सर. समझ आ रहा है ना तो कि अब ये जो लेवल ऑफ फिल्टरिंग जो कि पुराने क्वेश्चन के साथ बस एक एडिशनल डिफिकल्टी डाला है कि बस ये कंडीशन तुम करो, ये हैविंग से सॉल्व होगा, ये समझ आ रहा है ना सबको? वेट से तो नहीं हो सकता, राइट? तो हैविंग काउंट 1 between 1 and 2 हो गया सॉल्व. तो कितने रिकॉर्ड आएंगे? 2. 2 आएंगे, करेक्ट. क्योंकि 1 2 3 ऐसा काउंट था, राइट? तो 2 ही आएंगे. और 1 और 2 का ही आएगा क्योंकि जिसका आर्टिस्ट आईडी जितना था उसको उतना काउंट था. क्लियर या डाउट? क्लियर ये सर. लिखने में दिक्कत था ना आशीष? जी सर. right? तो यहाँ पे बिटवीन नहीं लिख के एक ग्रेटर देन एक लेस देन वो वाला भी कर सकते जी सर. जी सर, ग्रेटर देन और लेस देन हैं. 2. या फिर मेरे को बिटवीन लिखने का भी जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जीरो का भी होगा नहीं, राइट? लेस तो भी हो लेस सकता देन है इक्वल टू काउंट. 2 लिख लेंगे तो हो जाएगा. हाँ, ये भी हो जाएगा. क्लियर, राइट? ओके, ठीक है, ये करते हैं. 1 मिनट लो और सोचो, ठीक है?